علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے توسل جلیلہ سے ہم سب لوگ اس خوبصورت بزم پاک میں محفل پاک میں جو بڑی 11ویں شریف کی مناسبت سے انعقاد پذیر ہے، اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ آپ کے توسل جلیلہ سے ہم سب کا حاصل ہونا، ذکر کرنا، سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پہلا یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہم اس کو بڑی 11ویں کیوں کہتے ہیں؟ بڑی 11ویں اصل میں ہمارے یہاں اہل سنت کے یہاں معمول ہے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو، چاند کی 11 تاریخ کو مساجد کے اندر 11ویں شریف کا پروگرام ہوتا ہے۔ 11ویں شریف کی نسبت حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ آپ کے تذکرہ مبارک کے اندر آپ کے اصالہ ثواب کے لیے، آپ کے وسیلہ جلیلہ سے خیر و برکت کی دعائیں کرنے کے لیے یہ خوبصورت جو محافل منعقد کی جاتی ہیں ان کو 11ویں شریف کی محفل کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ہر مہینے کی چاند تاریخ جو ہوتی ہے 11 کو محفل ہوتی ہے، تو ان محافل میں اور اس میں فرق کرنے کے لیے جو ہے نا ہم کیونکہ 11 ربیع الثانی شریف میں حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ آپ کا وصال ہوا، تو عرس مبارک بھی ہے، سالانہ ختم شریف کی محفل بھی ہے، اصالہ ثواب کی محفل بھی ہے، تو باقی محفل سے فرق کرنے کے لیے 11 ربیع الثانی کو یا اس ماہ مبارک کے اندر اہل سنت کی مساجد میں جو 11ویں شریف کی محفل منعقد کی جاتی ہیں تو اس کو بڑی 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ بڑی 11ویں شریف کس اعتبار سے کہا جاتا ہے؟ سالانہ محفل کے اعتبار سے، یعنی عرس مبارک کے اعتبار سے۔ پھر اکثر آباد وہ کہتے ہیں کہ 11ویں شریف جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ میں آپ کو سادہ سی باتیں سمجھاتا ہوں 10-15 منٹ میں، ان کی نا دلائل مختلف ہیں۔ پہلی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ 11ویں شریف جو ہے اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں نہیں تھی۔ تو جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں نہیں تھی تو لہٰذا بعد میں ہوئی، تو جو شے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ کے بعد میں ہوتی ہے وہ بدعت ہے، اور جو بدعت ہو جائے وہ کیا ہے؟ گناہ ہے، اور گناہ کے لیے جو معطل کر کے بیٹھتے ہیں اس میں ثواب تو ہوتا نہیں، گناہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا حضور کے دور میں نہیں تھی تو 11ویں شریف منانا یا 11ویں شریف کی معطل کرنا یہ جائز نہیں، یہ دلیل ہے ان کی۔ اب ہم بیٹھے آپس میں سادہ سی بات ہے، آپ ان کو یہ کہیں کہ یار بات سمجھنے سمجھانے والی ہے تو سمجھتے ہو سمجھاتے ہیں۔ آپ نے یہ دلیل دی کہ جو شے حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں نہیں تھی وہ بدعت ہے، اور جو بدعت ہے وہ کیا ہے؟ گناہ۔ آپ کا یہ اصول ہے نا، اب اسی اصول کے اوپر ہم آپ سے کچھ سوال کرتے ہیں، 1-2 سوال کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں یہ جو مساجد ہم پکی کرتے ہیں، پکی مساجد بناتے ہیں، جیسے یہ پکی مسجد بنی ہوئی، آپ کے دور میں نہیں تھی، بلکہ دور میں تو کیا آپ نے منع فرمایا، آپ نے منع فرمایا تھا کہ مساجد کو پکا نہیں کرنا۔ اتنا منع نہیں فرمایا بلکہ فرمایا مساجد کے اوپر چونا نہیں کرنا، ڈیکوریٹ نہیں کرنا۔ اب اگر آپ کا اصول دیکھتے ہیں کہ جو حضور کے دور میں نہیں ہے وہ بدعت اور گناہ ہے، تو جب آپ اپنے نمازیوں سے چندہ لیتے ہو جو 11ویں شریف کی محفل، ہمارے لیے تو چندہ بھی جائز ہو گیا۔ ہم تو جو اصول بنا کے بیٹھے ہمارا وہ اصول نہیں ہو، یہ کہتے ہیں آپ کے اصول کے مطابق جب بھی آپ چندہ لیں نا، آپ کے نمازیوں میں سے کوئی بھی کہے کہ میری طرف سے مسجد کے اندر پینٹ ہوگا، آپ اس کو یہ کہیں کہ جو آپ پیسے دے رہے ہو نا یہ پیسے دینا گناہ ہے، یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ کیوں بدعت کے زمرے میں آتا ہے؟ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں ایسا نہیں تھا۔ جب یہ گناہ ہے، بدعت کے زمرے میں آتا ہے، مجھے آپ بتائیں ان کی مسجد کے اندر کوئی فنڈ دے گا؟ کوئی چندہ دے گا؟ کوئی 1 روپیہ بھی دے؟ یہ سادہ سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی بھی آپ کی بات ہو جاتی ہے تو آپ کہیں کہ آپ جو 11ویں شریف کو جس مسجد کے اندر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ نجائز ہے، نجائز بھی نہیں کہتے، گناہ ہے، بدعت ہے، اور بدعت کا معنی پتہ کیا لیتے ہیں؟ دلالت، گمراہی ہے جو دوزخ میں لے کے جائے گی۔ آپ انہیں کہیں کہ جس مسجد میں بیٹھ کے آپ 11ویں شریف کو نجائز کہہ رہے ہیں بدعت کی بنیاد پہ، اس مسجد کے اندر کئی کام ایسے ہوئے ہیں جو بدعت کے زمرے میں آتے ہیں۔
जो गुनाह के जुमरे में आते हैं आपके उसूल के, हमारे उसूल के मुताबिक नहीं, आपके उसूल के मुताबिक, तो पहले आप उनको बिदत कहें, उनको गुनाह कहें, तो फिर 11वीं शरीफ को भी गुनाह कहें तो हम मान लेंगे। एक ये दलील। दूसरी दलील ये दें कि मौलाना जिस स्पीकर में आप बैठ के ये कह रहे हो कि 11वीं शरीफ क्या है, बोलिए 11वीं शरीफ क्या है, बिदत है, गुनाह है, नाजायज है, तो ये स्पीकर जिसके अंदर आप कह रहे हो, जिसके जरिए आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, ये तो खुद स्पीकर आका करीम अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारका में नहीं था। आपने उसूल बनाया ना, जो हुजूर के दौरे मुबारका में नहीं है वो बिदत है, वो जायज नहीं है। तो जिस स्पीकर में आप 11वीं शरीफ को नाजायज कह रहे हो, बिदत होने की वजह से वो स्पीकर खुद बिदत है, गुनाह है। आप पहले उस स्पीकर को तो हटाएं साइड पे, मसाजिद से स्पीकर तो उतरवाएं, फिर आप कहें कि 11वीं शरीफ बिदत है, फिर तो मानने में बात आती है। आप मस्जिद का चूना जायज करा दे के बैठे हैं, मस्जिद के अंदर डेकोरेशन जायज करा दे के बैठे हैं, मस्जिद को पक्की बनवाने को जायज करा दे के बैठे हैं, स्पीकर सामने मुंह के सामने लगाए हो, एक एक माइक भी, हमारे पास तो एक माइक है ना, उनके तो 4-4 माइक लगे होते हैं, आपने एक माइक भी नहीं, 4-4 माइक जो बिदत है उसको आप जायज करा दे के बैठे हैं। तो ये सारी चीजें जब जायज हो गई तो आपका उसूल जो है वो गलत है। इससे ये साबित हुआ कि हर जो बिदत है वो गुनाह नहीं होती है। दूसरा उसूल क्या कहते हैं, वो कहते हैं तारीख का तायुन करते हैं। आप कहते हो 11वीं शरीफ तारीख का तायुन है, हम कहते हैं चले आपका ये उसूल ले लेते हैं। आपका उसूल ये हुआ कि जिस शय के अंदर तारीख का तायुन आ गया वो शय क्या हो गई, नाजायज है, वो क्या हो गई, नाजायज हो गई। अगर शरा ने उस तारीख का तायुन नहीं किया, मसलन ईद उल फितर है, इस तारीख का तायुन किसने किया, शरा ने किया। ईद उल अजहा है, बड़ी ईद जिसे हमें कहते हैं, कुर्बानी की, इसका तायुन किसने किया, शरा ने किया। इसी तरह रोजों का महीना, इसका तायुन किसने किया, शरा ने किया। लैलतुल कदर की तायीन किसने की, शरा ने की। वो कहते हैं जिन जिन तारीख का तायुन शरा ने किया है ना वो तो जायज है, जिनका तायुन शरा ने नहीं किया है ना, अगर उनमें हम तारीख का तायुन करेंगे वो बिदत हो जाएगी। जब वो शायद बिदत हो गई तो नाजायज हो गई। हमने कहा चले आपका ये उसूल देख लेते। फिर तो आपका कोई भी प्रोग्राम, कोई भी इज्तिमा, कोई भी जलसा, कोई भी आप इज्तिमा करेंगे, कोई भी जलसा करेंगे, कोई भी प्रोग्राम करेंगे, उसमें तारीख का तायुन करेंगे या नहीं करेंगे, बताएं। तारीख का तायुन होगा ना। तो जब तारीख का तायुन हो गया आपके उसूल के मुताबिक कि तारीख का तायुन करने से वो शायद बिदत बन जाती है, क्योंकि शरा ने तायुन नहीं किया, तो लिहाजा आपके इज्तिमा की तारीख, आपके प्रोग्राम की तारीख, आपके किसी भी इज्तिमा की तारीख का जब तायुन हो जाए तो वो तायुन करने की वजह से वो इज्तिमा क्या हो जाएगा, बिदत हो जाएगा। तो जब वो इज्तिमा बिदत हो गया तो उसका करना, उसमें बैठना, उसके अंदर बयान करना, सारे अमाल करना जो नेक और साले अमाल होंगे उसके ऊपर सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा, गुनाह मिलेगा। आपने ये बात की ना उससे, कहेंगे नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो नहीं, ये हमारा मकसूद नहीं है। आपके अंदर आपका ये मकसूद नहीं है तो फिर 11वीं शरीफ में आपका मकसूद ये कैसे आ गया तारीख का तायुन होने से। तो लिहाजा इससे ये बात वाज़ेह हुई कि हर अमल के लिए जो तारीख का तायुन होता है ना वो बिदत नहीं होता। बिदत कब बनती है तारीख का तायुन कर, तारीख का तायुन उस टाइम बिदत बनती है जब हम कहें कि किसी ने भी बड़ी 11वीं शरीफ की महफिल करवानी है ना, वो 11 रबीउल सानी के अलावा नहीं कर सकता। अगर हम ये जुमला बोलें 11 रबीउल सानी के अलावा हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह का इसाले सवाब नहीं कर सकता। ये जब आपने इस तरह तायुन किया है ना, ये बिदअत है, ये गुनाह है, ये जायज नहीं है। हम जब भी बड़ी 11वीं शरीफ का नाम लेते हैं तो क्या कहते हैं कि कोई इस दिन करना चाहे तो इस दिन कर ले, पहले कोई करना चाहे तो पहले कर ले, बाद में कोई करना चाहे तो बाद में कर ले। साल के किसी भी दिन बड़ी 11वीं शरीफ की मुनासबत से इसाले सवाब की महफिल करना चाहे तो वो कर सकता है। जब हमारे यहाँ तायुन का माना ये है तो इस वजह से ये बिदअत ना हुई। तो जैसे ही हम तारीख का तायुन करके बैठते हैं तो ये लोगों का एहतिमाम करना होता है, दावत देनी होती है। जैसे हर प्रोग्राम में जो तारीख का तायुन होता है, क्यों होता है कि लोग जमा हो जाए। इस वजह से तारीख का तायुन हो रहा है कि लोग जमा हो जाए, बैठकर कुछ जिक्र अज़कार होगा, कुछ बयान होगा, सीरत पाक का बयान होगा, कुछ तज़किरा पाक बयान किया जाएगा। इस हवाले से तारीख का तायुन ना आपके नजदीक बिदअत है। जब आपके नजदीक बिदअत नहीं है तो फिर 11वीं शरीफ ही की तारीख बिदअत कैसे हुई। अगली दलील वो क्या है,
अगली दलील वो ये देते हैं कि 11वीं शरीफ जो मंसूब है ना, ये गैरुल्लाह के नाम से मंसूब है। जब गैरुल्लाह के नाम से मंसूब हो गई तो ये शिर्क हो गया। आप बिदअत पे नहीं रुकेंगे, आप क्या कहेंगे? शिर्क हो गया। गैरुल्लाह का नाम किसके नाम पे हो रही है? पीरान पीर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के नाम पे, तो गैरुल्लाह का नाम आ गया। हमने कहा अगर आपका ये उसूल देखते हैं कि गैरुल्लाह के नाम पे कोई भी शय आ जाए वो शिर्क बन जाती है, तो हम आपसे एक सवाल करते हैं। हजरत साद इब्ने उबादा रज़ी अल्लाह तआला हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आए, अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं सफर में था, तो जब वापस आया तो मेरी वालिदा माजिदा का विसाल हो गया था। अगर मेरी उनके साथ मुलाकात होती तो मुझे जरूर सदका करने का हुक्म देती। मुलाकात नहीं हुई, अगर मैं उनकी तरफ से सदका करूं तो क्या उसका सवाब मेरी वालिदा माजिदा को पहुंचेगा? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नाम, अगर वो सदका करेगा तो उसका सवाब तेरी वालिदा माजिदा को पहुंचेगा। इससे एक मसला भी हल हो गया कि सिर्फ दुआ फायदा नहीं देती, कोई भी नमाज, रोजा, तबरुक शरीफ, लंगर शरीफ, कोई भी पैसे, कोई भी सदका व खैरात, कोई भी अमल जो आप करते हैं ना, उसका इसाले सवाब आप किसी को पहुंचाते हैं, तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की इस हदीस मुबारक की रोशनी में ये बात वाज़ेह हो गई कि उस अमल का सवाब उस फौतशुदा शख्स को पहुंचता है। अगली बात अर्ज के या रसूलल्लाह बेहतरीन सदका क्या है आज के दौर में? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मदीना मुनव्वरा के अंदर ना पानी की कमी है, पानी की कमी। अगर पानी का इत्मीम कर दो तो बेहतरीन सदका है। आप उठे, अर्ज किया या रसूलल्लाह फुला जगह पे कुआं खुदवाने का आप हुक्म दें, जो खर्चा आएगा वो मेरा होगा। जैसे बाल लोग कहते हैं जो महफिल पे खर्चा आया मेरा, जो मस्जिद में खर्चा आया मेरा, जो फुला दीन के काम पे खर्चा आया मेरा, जो फुला मर्द की मदद करने पे खर्चा आया वो मेरी तरफ से। अर्ज किया या रसूलल्लाह सारा खर्चा मेरी तरफ से होगा। कुआं बन गया, पेमेंट सब कुछ हो गई। अब आका करीम अलैहिस्सलाम भी उस कुएं के पास है, हजरत साद इब्ने उबादा भी उस कुएं के पास है। वहां लफ्ज सुनने वाले अर्ज किया या रसूल अल्लाह हाजा बिरुन लि उम्मे साद, ये जो कुआं है ना उम्मे साद के नाम से वक्फ कर रहा हूं। उम्मे साद का नाम जब आ गया, जैसे 11वीं शरीफ का नाम उम्मे साद का कुआं, तो गैरुल्लाह के नाम से मंसूब हो गया या नहीं हो गया? जब गैरुल्लाह के नाम से मंसूब हो गया तो मेरे दोस्त आपने ये कहा, हमने तो नहीं कहा ना, आपने ये कहा कि जो शय गैरुल्लाह के नाम से मंसूब हो जाए वो शिर्क है। तो आपका भी अकीदा है, हमारा भी अकीदा है कि आका करीम अलैहिस्सलाम के सामने शिर्क हो तो क्या आप उस शिर्क की इजाजत दे सकते हैं? कतान नहीं दे सकते। जब कतान नहीं दे सकते हैं, गैरुल्लाह के नाम से जो कुआं मंसूब किया जा रहा है आका करीम अलैहिस्सलाम उसकी इजाजत दे रहे हैं, तो ये दलील है कि गैरुल्लाह के नाम से हर शय जो मंसूब की जाती है वो हर सूरत में शिर्क या बिदअत नहीं बनती। अब हम आपको समझाते हैं कि शिर्क कब बनती है। शिर्क बनती है जब आप किसी भी शय को मंसूब करें, जिस शख्स के नाम पे मंसूब कर रहे हैं उसकी इबादत की नीयत हो, खुदा मानने की नीयत हो। हम में से एक छोटा बच्चा भी बैठा होगा, ये भी जब कहता है 11वीं शरीफ हुजूर पीरान पीर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तो इस छोटे से बच्चे की भी नीयत नहीं होगी कि हम उनकी इबादत की गरज से बैठे हैं। हम किस लिए बैठे हैं? इसाले सवाब के लिए बैठे। इबादत के नाम से किसी के साथ मंसूब कर दिया जाए फिर वो शिर्क बन जाता है। लेकिन यहां क्या है, हम अल्लाह की इबादत की नीयत से बैठे हैं। इसाले सवाब की नीयत किनकी है? सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह। तो हमारा बैठना, यहाँ पे जिक्र करना, तबरुक शरीफ का इत्मीम करना, ये सारे का सारा हजरत साद इब्ने उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस अमल मुबारक की रोशनी में क्या हुआ? हुजूर की सुन्नत पाक। अगला आखिरी सवाल हो गया, वो कहते हैं आपने इसका भी जवाब दे दिया हुजूर के दौर में नहीं है, तो हर शायद हुजूर के दौर में ना वो बिदअत नहीं बनती। तारीख के तायुन का भी जवाब दे दिया, गैरुल्लाह के नाम से जो मंसूब हो गया इसका भी जवाब दे। अगला पता क्या कहते हैं, ये आगे रख करना इसाले सवाब करते हैं। जैसे अभी हम खत्म पढ़े इसाले सवाब करते हैं, तो ये सामने रख कर इसाले सवाब कर रहे हैं ना, ये बिदअत है, ये भी बिदअत है, ये भी जायज नहीं। हम कहते हैं फिर आप वही बात कर रहे हो कि बिदअत है। पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या कुरान पाक की किसी आयत में या हदीस मुबारका की किसी भी हदीस पाक के अंदर खाना सामने रखकर कुछ पढ़ने का इशारा मिलता है या नहीं मिलता? कुरान पाक में वाज़ेह हुक्म है,
8वां पारा है, पहला रकू है, उसकी 3rd लास्ट आयत होगी तकरीबन। कुरान पाक ने फरमाया फकुलू, तुम खाया करो। किसको खाएं? फरमाया मिम्मा ज़ुकिरस्मुल्लाहि अलैहि, उस खाने को खाया करो जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिया गया हो। अल्लाह, अब कुरान पाक की जो आयात पढ़ते हैं, ये किसका नाम है, किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम। कुरान पाक कह रहा है, वो वहां पे अगली आयत में कह रहा है मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, तुम लोग क्यों नहीं खाते उस खाने को जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिया गया हो। ये कहते हैं कुरान की आयात पढ़ी गई है, उस खाने को आप नहीं खा सकते। मैं आपको ये मसला समझा रहा हूं। हदीस पाक क्या है, जब हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, जब उनका निकाह हुआ ना ज़ैनब बिन्त जहश आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ, तो हजरत अनस इब्न मालिक की वालिदा माजिदा ने हलवा बनाया। हलवा बनवा के अपने बेटे को कहा, बेटा ये ले जाओ और ये कहना कि ये मेरी वालिदा की तरफ से आया या रसूल अल्लाह। जब आप ये कहेंगे ना कि मेरी वालिदा की तरफ से आया है, तो आका करीम अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारका से मेरे हक में दुआ निकलेगी, और हुजूर जो दुआ फरमा देंगे अल्लाह वो दुआ रद्द नहीं फरमाता है। ये खाना आ गया, अनस इब्न मालिक लेके आए। हलवा थोड़ा सा था, लोग बड़ी कसीर तादाद में थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने खाना सामने रखा, हलवा सामने रखा। अब लोग कहते हैं मौलवी हलवा बड़ा खाते हैं, तो हलवा खाना भी किसकी सुन्नत है? सरकार मदीना की सुन्नत है। और हलवा खिलाना भी किसकी सुन्नत है? हुजूर के सहाबा की सुन्नत है, हुजूर के गुलामों की सुन्नत है। लिहाजा खाना खिलाना सारा कुछ क्या है? इससे एक और दलील भी मिल गई, महफिल पाक के अंदर लंगर शरीफ का एहतमाम करना भी क्या हो गया? ये जी कहते हैं जी महफिल पाक हो रही है, उसके अंदर लंगर शरीफ का एहतमाम है। ये लंगर शरीफ का एहतमाम क्यों किया जाता है? हमने कहा इस वजह से किया जाता है, ये हुजूर की सुन्नत है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हलवा सामने रखा, मामा लोग बहुत बैठे हुए हैं, हलवा पाला थोड़ा सा, ये बच्चे हैं अनस इब्न मालिक परेशान हो गए कि अब क्या होगा। हुजूर ने फरमाया भी दावत खा, ये हलवा सब ने खा के जाना है। ये किसका हलवा आया है? मेरी शादी की दावत में आया है, इसकी वालिदा ने मेरी शादी की दावत की है, उस दावत में आया। तो लिहाजा ये जो शादी हो जाती है, नई शादी होती है ना, मैंने दावत पे बुलाया, आपने बुलाया, उसने बुलाया, तो ये भी किसकी सुन्नत है? आका करीम अलैहिस्सलाम। ये सारी सुन्नतें हैं, जहां जहां हम जाएंगे किस किस की अदा याद आएगी? मेरे मुस्तफा करीम की याद आएगी, हमारे मुस्तफा करीम की याद आएगी। आपने रख दिया ऐसे ऊपर हाथ रख, जब हाथ रखा तो साहबा कहते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ रखने के बाद कुछ पढ़ा। क्या किया? कुछ पढ़ा। मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ पढ़ा। किसके ऊपर पढ़ा? खाने के ऊपर। उस खाने में क्या था? हलवा था। तो लिहाजा खाना सामने रख के, ऊपर हाथ रख के, या खाना सामने रख के बगैर हाथ रखे कुछ पढ़ना, ये किसकी सुन्नत है? अब जब कुछ पढ़ा ना, अनस इब्न मालिक को बुलाया, तो मैं बेटा इधर आओ, ये तकसीम करो। कहते हैं वो थोड़ा सा हलवा था, महफिल के अंदर जितने लोग बैठे थे ना, आपके पढ़ने की वजह से, आपकी बरकत की वजह से सारे लोगों ने पेट भर के भी हलवा खाया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने भी तनावुल फरमाया, फरमाया बेटा अनस, अब ये जो बरकत बाकी बच गई है ना, ये आपने घर में ले जाकर घर वालों को भी खिला दो। तो लिहाजा ये सारा आपके ज़हन के अंदर ऐसी किसी किस्म का शक और शुबा नहीं होना। किसी के साथ बहस हो जाए ना, लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं करनी, जैसे हमने समझाया है ना, बिदत नहीं है, तरीका तायुन भी हो जाए, कुछ पढ़ भी लें, ये सारा कुछ क्या है? आका करीम अलैहिस्सलाम के अमले पाक से साबित है। अब जो आयत पाक मैंने पढ़ी, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुफार मक्का को, मेरा वली अल्लाह है, मेरा वली अल्लाह है जिसने इस किताब लारैब को नाज़िल किया। अगली बात सुनने वाली है, सिर्फ ये नहीं कहा कि मेरा वली अल्लाह है, बल्कि अल्लाह की निस्बत जो है ना औलिया किराम की तरफ भी की, कि ये कहना कि फुलां जो वली है उसका रब हो, इसमें एक करामत है, उस शख्स की करामत, अल्लाह की नहीं। अल्लाह तो इज्जतों का मोहताज ही नहीं है, वो तो सारी इज्जतों का मालिक है, कि किसी शरफ की बुनियाद पे कहना है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम जब लफ्ज बोले ना, वो कुरान पाक का हिस्सा बन गए। फरमाया वहुवा यतवल्ला सालिहीन,
وہ جتنے بھی نیک صالح اولیاء کرام ہیں وہ رب اپنے ان اولیاء کی مدد بھی فرماتا ہے، ان کی نصرت بھی فرماتا ہے، ان کی بھی حفاظت فرماتا ہے، جو ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ان کی عقیدت مندوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ لہذا کسی ولی کی نسبت سے اللہ کے حضور دعا کرنا، اس آیت پاک کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ وہاں پہ دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ کسی کا وسیلہ دینا، وسیلے دینے سے دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک، ایک صحابی فوت ہو گئے، ان کے اوپر قرض بڑا تھا، ان کے جب آخری وقت آیا نا فرمایا بیٹا قرض بہت ہے، میں جا رہا ہوں، مشکل تو ہوگی، لیکن جب بھی تو نے دعا کرنی ہے نا تو یہ کہنا یا رب زید، یا رب زید، اے زید کے رب۔ یار زید کا رب کہنا ضروری ہے؟ وہ تو بغیر اس کا نام لیے بھی تو سنتا یا نہیں سنتا؟ سنتا ہے نا۔ تو نام کیوں سکھایا اس صحابی نے؟ کیا وہ بدعت سکھا رہے ہیں، شرک سکھا رہے ہیں؟ صرف کیا ہے کہ جب نسبت اللہ تعالیٰ بھی جب بولتا ہے کیا فرماتا ہے؟ فلا و ربی کا، اے مصطفیٰ آپ کے رب کی قسم، کیا وہ ہمارا رب نہیں ہے؟ مصطفیٰ کا نام کیوں لیا؟ کہ مصطفیٰ کو جب دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آنے والا اتنا حسین اور شانوں کا مالک ہے، جس نے بھیجا ہوگا وہ رب کتنی شانوں کا مالک ہوگا۔ کہا بیٹا جب بھی اللہ سے دعا کرنی ہے نا یہ کہنا یا رب زید، جیسے ہی دعا کرے گا نا یہ جتنا قرض ہے نا اللہ اس قرض کو اتار دے گا۔ صحیح بخاری شریف اٹھائیے، صحیح بخاری شریف، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے یہ دعا کی نا، لاکھوں میں قرض تھا، لاکھوں میں، جب بھی میں نے یہ دعا کی نا اس دعا کے بعد اللہ تعالی ہر دعا کے بعد جب بھی مانگتا تھا غیبی مدد فرما دیتا، ہزاروں کا قرض میں وہاں جگہ پہ بیٹھے بیٹھے لوگوں کا ادا کرتا رہتا تھا۔ اس دعا کی برکت سے جو لاکھوں کا قرض تھا اللہ تعالیٰ نے میری طرف سے وہ قرض ادا کروا دیا۔ کیوں ادا کروایا؟ نسبت کی وجہ سے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اے شیخ عبد القادر جیلانی کے رب، اے رب شیخ عبد القادر جیلانی، اے شیخ عبد القادر جیلانی کا رب، ہماری یہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ کو یہ نسبت بڑی پسند ہے اولیاء کرام کی۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے رب کائنات ہم سب کا یہ ذکر پاک کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔